Hi friends, myself Dr. Nitin, and today I am going to start a new subject which name is digital communication engineering और काफ़ी यूनिवर्सिटी में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स बोलते हैं और काफ़ी जगह डिजिटल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. This is very important subject और one of my favorite student have demand me yesterday on call at 5 p.m. His name is Vishwas Bohra, and he asked that, sir, in theory you have teach very well, we have clear all the concepts, but we have facing some problem in the numerical portion because we have a lacking of some kind of foreign authors, Simon Haykin and top selling kinds of books. We have not purchased yet now, and we are trying to purchase this books. Of course, you are going to purchase the Simon Haykin and Top Selling and B.P. Lathi, and some of more books for your to get 100 out of 100 marks. To get 100 out of 100 marks. Now, what I have started when I have teach and open a new subject. So in this subject I am not going to teach you any kind of theory because theory I have completely covered till yet. पूरा syllabus में अगर 4 यूनिट है तो हम almost 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, and we have some kind of lectures also before the examinations. We have sufficient lectures to cover 100% syllabus in my subject digital communication, so that 100% means word to word complete the syllabus. This is the specialty of my teaching, that I have a complete that I have a complete 100% syllabus. Sorry, the call is interrupted and during this lecture. So today what we are going to do? We are not going to teach digital communication concepts. We are not going to teach digital communications block diagrams because we have covered all the things. So in this subject, there is a very most important part is that numericals. Might be possible 70% are numerical appeared in this in the examinations. Might be possible 50% of numericals are appeared in examination, and might be possible there is a 30% of chances to appear of numericals in this paper. But the very important thing I am going to tell you that in the GATE examination, these numericals are quite helpful to solve this subject, analog communications and digital communication systems. Fine. So now we are going to start the digital communication roadmap. डिजिटल कम्युनिकेशन रोड जो लोग मेरे साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं दे नो वेरी वेल कि सर कोई भी चीज़ करवाते हैं तो उससे पहले रोड मैप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रोड मैप के देखिए मैं आपको प्रॉमिस करवाता हूँ कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप यूनिवर्सिटी में अचीव करेंगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, एड्रेस नहीं पता, तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर हम अचीव नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम, इंजीनियरिंग की जगह काफ़ी लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नाम से भी इसको बोलते हैं. नहीं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो RTU कोटा की जो एमटेक में जो सब्जेक्ट चलता है, एमटेक में भी ये सब्जेक्ट चलता है अपने पास, मतलब बीटेक में तो सब्जेक्ट चलता ही चलता है, इसके अलावा एमटेक में भी ये सब्जेक्ट चलता है. एंड यू आर सरप्राइजिंग दैट दिस सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी अपेयर्ड इन द योर PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. सो in this particular module we are going to show the roadmap to solve how a numerical problems in a digital communication. So before going to discuss the roadmap, मतलब roadmap पहले अपन जाके डिस्कस करें, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट के अंदर हैं, और उन यूनिट्स के अंदर हमें कौन से न्यूमेरिकल्स को हमको करना है. तो हमसे सबसे पहले जो बात बोलता हूँ मैं आपको कि वो है अपने पास में यूनिट फर्स्ट यू हैव एंजॉयड वेरी वेल. यूनिट फर्स्ट बोलते हैं अपने पास में PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन. जब PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात आती है अपने पास, मतलब PCM को बोलते हैं अपन पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो हम इसमें पढ़ते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन. हम इसमें पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन
इसके अंदर हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग, इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डीएम जिसको बोलते हैं डेटा मॉड्यूलेशन, एडीएम जिसको बोलते हैं अपने पास में एडेप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन, उसके बाद में हम बोलते हैं डीपीसीएम जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वर्कआउट करके चलते हैं और कैसे सिग्नल को क्लियर किया जाता है। मतलब अगर पीसीएम में बात करते हैं तो पीसीएम के अंदर, अगर मैं पीसीएम के अंदर बात करता हूँ तो पीसीएम की ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर क्या क्या आता है अपने पास में, ट्रांसमीटर आता है, रिसीवर आता है और एक होता है अपने पास में रिपीटर, एक होता है रिपीटर। रिपीटर क्या है, टू क्लियर द वेवफॉर्म, टू क्लियर द वेवफॉर्म, टू क्लियर द वेवफॉर्म की जब बात होती है अपने पास में, टू क्लियर द वेवफॉर्म की बात होती है तो ये मानो कि मेरे पास में ये कोई वेव आ रही है जिसके अंदर क्या है कि पीसीएम सिग्नल है, पीसीएम सिग्नल है प्लस क्या है मेरे पास में नॉइज है। तो ये जब रिपीटर के थ्रू जाएगा, रिपीटर के थ्रू जब निकलेगा तो बाहर जो सिग्नल निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरे पास में, क्लीन और क्लियर सिग्नल, ऐसा सिग्नल होगा। नॉइज क्या हो गया अपने पास में, एब्सेंट। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे क्योंकि थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हुआ आपका यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन किसकी, यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड जो है वो अपने पास में क्या है, बेस बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, बेस बैंड ट्रांसमिशन के अंदर हम जो कवर करेंगे अपने पास में, हमने स्टार्ट कर दी यूनिट, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, लाइन कोडिंग के बारे में बात करेंगे। वो लाइन कोडिंग में अपने पास में नॉन रिटर्न टू जीरो और रिटर्न टू जीरो टाइप्स की वेवफॉर्म्स हम क्लियर करेंगे अपने पास में। इसके अंदर अपन इंटर सिंबल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अपन नाइक्वेस्ट क्रिएशन एंड राइज कोसाइन के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ अपने पास में, यूनिट सेकंड की बात हुई। अब हम बात करते हैं क्या, यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड जो होगा वो क्या होगा मेरे पास में, यूनिट थर्ड जो है वो क्या मेरे पास में, सिग्नल स्पेस कंसेप्ट। मतलब जो मॉड्यूलेशन अपन करते हैं उनका सिग्नल स्पेस जितने भी कंसेप्ट हैं वो अपन यहाँ डिटेल में यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ सिग्नल स्पेस की तो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ऑर्थोगोनलाइजेशन कंसेप्ट्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर हम पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनके बारे में अपने पास में स्टडी करेंगे। ग्राम स्मिथ जो ऑर्थोगोनलाइजेशन कंसेप्ट है इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। इंपॉर्टेंट थियरिटिकल क्वेश्चन है, किसके अंदर आएगा अपने पास में, बीटेक के अंदर इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एमटेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप आरटीओ कोटा यूज करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अपने पास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है अपने पास में। नाउ हम बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट जब अपन बात करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ तो वो हुआ मेरे पास में क्या, let's see, unit 4 we have completed unit 3rd. Now the next is unit 4th. The next is क्या हो रहा है अपने पास में, यूनिट 4 क्या कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का और उसमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके बारे में अपन बात करें अपने पास में। सो यूनिट 4 जो होगी वो क्या होगी, मल्टी यूजर रेडियो कम्युनिकेशन और चाहे तो अपन इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, मल्टी यूजर रेडियो कम्युनिकेशन एंड सिस्टम्स। जब मल्टी यूजर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूंगा तो द फर्स्ट जो है, जो मोबाइल फोन्स हम यूज कर रहे हैं, जो अपने पास में हम टच स्क्रीन के मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं अपने पास में, ये जो मोबाइल फोन्स जो हैं है ना, या वॉकी टॉकी है या फिर कोई मोबाइल फोन्स गैजेट्स जो हैं, ये जो चलते हैं इनके अंदर बहुत मतलब ब्रॉडबैंड स्टेशन वगैरह सारी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स पिक्चर में आता है अपने पास में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आता है GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होगा अपने पास में। उसके बाद में GSM के बाद में TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस,
CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और GSM के अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर GPS भी दे रखा है अपने पास में। तो इनकी बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी, और यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टडी के लिए एक नया अपन फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्विच फॉर यूनिट, वी आर गोइंग टू स्विच फॉर यूनिट 5। यूनिट 5 जो है अपने पास में, यूनिट 5 जो है वो क्या शो करेगी मेरे को। यूनिट 5 है वो इंफॉर्मेशन थियरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर क्या होगा, सारे मतलब क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो जाएंगे मेरे पास में, कोड्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे गाउसन चैनल कैपेसिटी है, या मैं CH चैनल कैपेसिटी के बारे में बात कर लूँ, या फिर मैं अपने पास में इंपॉर्टेंट बात करता हूँ जो सब जगह पूछा जाता है, सेनेंस थ्योरम, इसके बारे में पिक्चर में आएगी अपने पास में बात। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो बैंडविड्थ, या फिर मेरे पास में क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ट्रेड ऑफ के बारे में अपन इसमें डिस्कस करते हैं इस यूनिट के अंदर, है ना। या इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या यूज़ करेंगे अपने पास में, एंट्रोपी टाइप की चीज़ें इस यूनिट के अंदर पिक्चर में आएगी अपने पास में। सो यूनिट 5 इज कम्प्लीटेड। काफ़ी यूनिवर्सिटी में 4 यूनिट्स ही मेंशन होती हैं, 4 मज़ा आ गया, पढ़ना ही कम पड़ रहा है, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 यूनिट यूज़ करते हैं, तो 5 थोड़ा सा अच्छा रहता है अपने पास में। लेकिन जब मैं IIT और NIT और MNIT और BITS की जब बात करता हूँ, तो ये जो मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट है वो IIT, NIT और MNIT को भी एड्रेस करके चलता है। आई एम नॉट बाउंड टू पर्टिकुलर फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू टीच। आई एम हियर टू गिव यू ना complete education in a free of mode, to show that how effectively I am going to give the things to the society which I have learned. I am going to share things. Now the next unit is unit 6. Unit 6 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 6 जब मैं बात करता हूँ अपने पास में, तो वो आएगी मेरे पास में स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। देखिए, हमने यहाँ से एक सिग्नल भेजा ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल गया अपने पास में। बीच में क्या आया मेरे पास में, चैनल आया, और चैनल के बाद में क्या आया मेरे पास में, रिसीवर के थ्रू मैंने रिसीव किया। ये जो चैनल का जो पाथ है, यहाँ पर क्या चीज़ ऐड होती है मेरे पास में, यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन प्लस नॉइज ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, नॉइज को रिमूव करना पड़ता है। नॉइज जो इसको मेरे को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन की एक यूनिट है, जिसके अंदर में मेरे सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसके अंदर मैं प्रिसिडो नॉइज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब प्लस प्रिसिडो नॉइज मतलब PN नॉइज को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, बट क्या हो रहा है, ये नॉइज सिग्नल जब मेरे पास में प्रिसिडो कोडेड होकर जाएगा अपने पास में, तो मेरे पास में जो चैनल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जा रही है, चैनल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन या फिर टेक्निकल टर्म अगर बात करते हैं तो मैसेज जो ट्रैवल कर रहा है, वो मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्या जरूरत है अपने पास में, सिक्योरिटी एस प्रोवाइड करने की जरूरत है। वो कौन देगा अपने पास में, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन सिस्टम आपको रिप्रेजेंट करके देगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिट 7। जब मैं यूनिट 7 की बात करता हूँ, तो इसमें वापस से मैं क्या करता हूँ, कुछ कोडिंग्स और ऐड करते हैं अपने पास में, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सिक्योरली प्रोवाइड कर सकता है और डेटा को बहुत सिक्योर रख के चलेगा, मैसेजेस सिक्योर रहेंगे। तो कोडिंग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोडिंग एंड डीकोडिंग, क्योंकि मेरे को एक कोडिंग का करूँगा, मैं कोडिंग करूँगा अपने पास में ट्रांसमिटिंग एंड पर,
एंड डी कोडिंग, डी कोडिंग जो होगा वो क्या होगा मेरे पास में, रिसीवर के एंड के ऊपर होगा। सो कोडिंग एंड डी कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास में फर्स्ट टॉपिक होता है इसके अंदर, कोडिंग वाले यूनिट के अंदर। सेकंड जब मैं बात करता हूँ अपने पास में, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोड्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हैमिंग, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हैमिंग कोड, तो हैमिंग कोड है, देखो गेट वगैरह के अंदर भी पूछ सकता है कि ये कोड दे रखा है एक्स, उसको हैमिंग कोड में कन्वर्ट करके दो। या फिर अगर मैं बात करूँ साइक्लिक कोड, या फिर अगर मैं बात करता हूँ कि क्या है साइक्लिक कोड जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है अपने पास में। फोर्थ अगर मैं बात करके चलूँ अपने पास में, तो लीनियर ब्लॉक कोड्स, लीनियर ब्लॉक कोड्स उसमें अपने पास में। So finally we have introduced the 7 units in a digital communication system, which covers the IIT, MNIT, BITS or NITs and XYZ university in a very well manner. I am damn claim that कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके जो कंसेप्ट्स हैं, यही कंसेप्ट सब जगह अपने पास में यूज होंगे। इफ यू रियली लव माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, hit on the bell button and like it and share to your friends, because some of the universities you have examination in your hand or you have running examination and you have a paper of digital communication system, digital communication engineering or digital communication. So happy learning. Bye.